हेलो स्टूडेंट्स सकलोके स्वागतम आन এটা নতুন ভিডিও লৈ তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10 হিন্দী ইলেক্টিভ সাবজেক্টৰ 4 নম্বৰ পাৰ্ট ভোলাৰাম কা জীৱ। স্টুডেন্টস তোমালোকে যদি হিন্দী ইলেক্টিভত লেটাৰ মাৰ্কস লাগে মোৰ ক্লাছবোৰ ফলো কৰিবা 100% পাবা। কেনেকৈ পাবা মই তোমালোকক কমপ্লিট প্ৰসেছখিনি এইটো ক্লাছত দেখাই দিম। আমি প্ৰতিটো পাৰ্ট কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, পাৰ্টত থকা সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পঢ়িব লাগে, আমি এইটো ক্লাছত আলোচনা কৰিম। লগতে আমি কি আলোচনা কৰিম, যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে তাৰে ভিতৰত কোনবোৰ প্ৰশ্ন 100% কমন পৰাৰ সম্ভাৱনা পৰীক্ষাত আছে সেইটো বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি এডিশনাল কুৱেশ্যন এনসাৰ অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ, এই পাঠৰ ভিতৰুৱা যিমানখিনি অতিৰিক্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব পাৰে গোটেইখিনি ক্লাছত আলোচনা কৰা হ'ব। আমি অভ্যাসমালাত থকা প্ৰশ্নখিনি পঢ়াৰ আগতে সদায় তোমালোকে কি কৰিব লাগে, কবি পৰিচয়ৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰশ্ন আহে। প্ৰতিটো পাঠৰ পৰা 2টাৰ পৰা 3টা শৰ্ট কুৱেশ্যনছ হওক বা অলপ দীঘল হওক কবি পৰিচয়ৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে। আমি অভ্যাসমালাত থকা প্ৰশ্নখিনি পঢ়াৰ আগতে এই ৰঙা কালাৰত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি কবি পৰিচয়খিনি পঢ়ি যিমানকেইটা হ'ব পাৰে, যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আগতে পৰীক্ষাত আহি যোৱা এই গোটেইকেইটাৰে কি কৰা হৈছে প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকক সুন্দৰকৈ আৰু শ্বৰ্টকৈ বনাই দিয়া হৈছে। এই অভ্যাসমালাত থকা তোমালোকৰ কবি পৰিচয়ৰ পঢ়া প্ৰশ্নখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ, ঠিক আছে। আৰু লাষ্টত আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন, এইবোৰ পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই বেছি সম্ভাৱনা আছে আৰু এইকেইটা আমি ক্লাছটোৰ শেষত আলোচনা কৰিম। চ' তোমালোকে ক্লাছটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। ভোলাৰাম কা জীৱ পাঠটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে? হৰিশংকৰ পৰছাই। 4 নম্বৰ পাঠ। প্ৰতিটো পাঠৰ কবিৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগে। কবি পৰিচয়ৰ পৰা নহ'লেও গোটেই পেপাৰটোত তোমালোকৰ 15ৰ পৰা 20 মাৰ্কছ কবি পৰিচয়ৰ পৰা আহে। চ' এই হৰিশংকৰ পৰছাইৰ বিষয়ে যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইখিনি মই গোটেই পঢ়ি যিমানকেইটা হ'ব পাৰে তোমালোকক শ্বৰ্টকৈ বনাই দিছোঁ। যেনেকৈ ইয়াত দিয়া আছে হৰিশংকৰ পৰছাই জীৱন আৰু সাহিত্য, মানে জীৱন আৰু সাহিত্য জীৱনীৰ বিষয়ে ইয়াত প্ৰশ্ন সজোৱা হৈছে। প্ৰথম প্ৰশ্ন, हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यार उत्तर हब परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गाँव में हुआ था। मनत राखिबा कत और केতিয়া হৈছিল গোটেইখিনি মনত ৰাখিবা, আহিব পাৰে পৰীক্ষাত। তাৰপিছত নেক্সট আছে उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एम ए की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा কৰ পৰা লৈছিলে? नागपुर विश्वविद्यालय পৰা লৈছিলে। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে परसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यार उत्तर হ'ব उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে हिंदी साहित्य जगत में वे किस रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए थे? মানে কি ৰূপত তেওঁ বহুত কি হৈছিলে, ফেমাস হৈছিলে? ইয়াৰ उत्तर হ'ব যে वे मुख्य रूप से एक व्यंग्य लेखक के रूप में विख्यात हुए हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह के नाम लिखिए। यार उत्तर हो जे हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। এইটো কি? এইটো হল কি उनके प्रमुख कहानी, ठीक है। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों का नाम क्या है? उपन्यासर नाम सुधिसे रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। এই দুখন হল কি উপন্যাস। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে परसाई जी के निबंध के मुख्य विषय क्या रहे हैं? यार उत्तर हब उनके निबंधों के विषय मौलिक और सामयिक है। उन्होंने समाज में फैले पाखंड, भ्रष्टाचार, शोषण और बेईमानी जैसी कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया है। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে उनकी भाषा शैली का क्या विशेषता है? यार उत्तर हब उनकी भाषा आम आदमी के बोलचाल की भाषा है, जिसमें 20-20 में अंग्रेजी शब्द का सटीक प्रयोग किया गया है, जो उनकी रचनाओं को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है परसाई रचनावली कितने भागों में प्रकाशित है? यह 6 भागों में प्रकाशित है। এইকেইটা আছিলে তোমালোকৰ কি এই কবি পৰিচয়খিনি পঢ়ি যিমানকেইটা হ'ব পাৰে
দিয়া হৈছে আৰু আমি লাষ্টত কেইটামান কমন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, তোমালোকে মিছ নকৰিবা। এতিয়া আৰম্ভ হ'ব অভ্যাসমালাত থকা। তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত প্ৰথমে দিয়া আছিলে কি, এইটো তোমালোকে দেখিব পাৰিছা নিশ্চয়। প্ৰথমত অভ্যাসমালাত দিয়া আছে বোধ এবং বিচাৰ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন সহি বিকল্প কা চয়ন কৰক, অৰ্থাৎ MCQ। এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু 4টা উত্তৰ দিয়া আছে, কোনটো শুদ্ধ হয় এইটো বাছিব লাগিব। এতিয়া আমি পঢ়িম যে প্ৰথমটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে ভোলাৰাম কে জীव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 5 দিন पहले, অর্থাৎ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো সঠিক উত্তৰ। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে नारद भोलाराम का घर पहचान गए, কি হ'ব এইটো, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মা बेटी के सम्मिलित क्रंदन सुनकर। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে धर्मराज के अनुसार नर्क में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन शामिल है। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি उपयुक्त सभी। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया আছে घ नंबरत जे बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरख्वास्त पर वजन रहने की सलाह दी। यहाँ वजन का अर्थ क्या है। यार उत्तर হ'ব যে रिश्वत। यार उत्तर तो यार अर्थात कि रिश्वत হ'ব। এতিয়া 2 নম্বৰত দিয়া আছে पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, अर्थात सम्पूर्ण वाक्यत उत्तर दिया। प्रश्न हल भोलाराम का घर किस शहर में था। यार उत्तर হ'ব भोलाराम का घर जबलपुर शहर में था। नेक्स्ट दिया है भोलाराम को सेवानिवृत्त हुए कितने वर्ष हुए हैं। यार उत्तर হ'ব भोलाराम की सेवानिवृत्त हुए 5 वर्ष हुए थे। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया है भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया। उत्तर হ'ব भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को गरीबी की बीमारी का शिकार बताया था। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया है भोलाराम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया दिया था। उत्तर হ'ব भोलाराम ने मकान मालिक को 1 साल किराया नहीं दिया था। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया है बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा। उत्तर होगा बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के लिए बदले में बिना मांगा था। তাৰপিছত नेक्स्ट तुम्हारे 3 नंबर दिया से संक्षिप्त में उत्तर दो। क नंबर प्रश्न पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ किस घटना का संकेत मिलाता है। এই বাক্যটো তোমালোকৰ পাঠৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে। এই বাক্য সন্দৰ্ভত কি কৈছে লিখিব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ इस घटना का संकेत मिलाता कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते ओ आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया से जे यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया। उत्तर होगा जे यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में यह बताया कि आज तक उन्होंने कभी धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव ने उन्हें चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी तब यमदूत ने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जयोही में उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ। तो ही वो यमदूत के चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। তাৰপিছত नेक्स्ट दिया है धर्मराज ने नर्क में किन किन लोगों के आने की पुष्टि की। उन लोगों ने क्या क्या अनियमितताएं की थी। उत्तर होगा धर्मराज ने नर्क में बड़े गुणी कारीगर, ठेकेदार, बड़े बड़े इंजीनियर और ओवरसियर के आने की पुष्टि की थी। गुणी कारीगर ने पूरे पैसे हड़प कर रट्टी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर जिन्होंने मजदूरों की
हाजिरी भरकर पैसा हरपा ये कभी काम पर गया ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न दिया से भोलाराम की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डालो। उत्तर होगा भोलाराम जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक ढेर कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसीलिए मकान मालिक उसे निकलना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया से भोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का क्या आशय था? এই কথাষাৰীৰ अर्थ की लिखिब लगे। उत्तर होब जे भोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का आशय यह था कि वर्तमान समय समाज व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर दफ्तर के बाबू ने ऐसा कहा। यह कहने का मूल आशय यह था कि आजकल रिश्वत के बिना काम नहीं होता, पर भोलाराम ने दरख्वास्त के साथ रिश्वत न भेजने के कारण उनके पेंशन की मंजूरी नहीं मिली थी। तारपिছত नेक्स्ट दिया से चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? उत्तर होब जे चपरासी ने नारद का सलाह दी कि महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए। तारपिছত नेक्स्ट दिया से बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया? उत्तर होगा बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में यह बताया कि नारद है बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यह भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चरानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, इन पर भजन रखिए। तारपिছত এতিয়া नेक्स्ट प्रश्न दिया আছে जे भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है। कहानी के आधार पर पुष्टि करो। यार उत्तर होब जे भोलाराम का जीव शीर्षक व्यंग्य कहानी में कहानीकार ने यह कहा कि आधुनिक समाज व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरों हर सरकारी दफ्तर में फैला हुआ है। इससे हर व्यक्ति प्रभावित है। 5 साल पहले भोलाराम सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं, अर्थात रिटायर्ड हुए हैं। दरख्वास्त देते देते उनका देहांत हुआ, पर रिश्वत न देने के कारण उनकी पेंशन मंजूर नहीं की गई। यह समस्या मात्र भोलाराम की ही समस्या नहीं है। 5 वर्ष तक पेंशन के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने वाले भोलाराम के परिवार का आर्थिक दयनीयता पाठकों को सोचने पर विवश कर देती है। यह कहानी सिर्फ अकेले भोलाराम की नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले सभी आम जनता इस फैले हुए रोग के शिकार है। इसके द्वारा लेखक ने आम आदमी की क्या किया परेशानी का सामने रखा है। तारपिছত नेक्स्ट दिया আছে कि आशय स्पष्ट करे। तলত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে, এইটো কি বুজাব খুজিছে এইখিনি আমি লিখিব লাগে। যেনেকৈ 1 নম্বৰত কৈছে दरख्वास्त पेपर वेट से नहीं दबती। यार उत्तर होब जे पेपर वेट का नाम पेपर वेट का काम होता है जरूरी कागजातों का हवा के झोंकों से बचाना। उड़ते कागजों को तो पेपर वेट
रोक लेता है, पर यदि किसी कार्यालय में किसी काम को करवाने के लिए खाली कागजातों के साथ पैसों का वजन नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा। अर्थात पैसों का वजन रखना पड़ता ही है, तभी उन अर्जियों पर काम होगा। विडंबना यह है कि आज सरकारी दफ्तरों पर इसी तरह काम करवाने के लिए घूस देनी पड़ती है। चपरासी से लेकर बड़े अफसरों तक घूस का सिलसिला चलता आ रहा है। जो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा घूस दे सकेगा उसका काम भी उतनी ही जल्दी होगी। तार पिছত नेक्स्ट और एटा आछे, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दिन पुण्य करना पड़ता है। उत्तर हब माने এই বাক্যশাৰী তোমালোকৰ পাঠৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে। এই বাক্যশাৰীৰ মানে মূল अर्थ কি বুজাব খুজিছে তাকে লিখিব লাগে। उत्तर হব जैसे मंदिर में हम फल फूल पूजा आदि करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, ठीक उस प्रकार सरकारी अफसर के कहने का आशय परी बनता है कि काम हासिल करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। এইখিনিতে তোমালোকৰ অভ্যাসমালাত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। এই গোটেইকেইটা তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া কিছুমান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। এইবোৰ এক্সট্ৰা বা অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়। পাৰ্টটো পঢ়ি আৰু কবি পৰিচয়খিনি পঢ়ি যিমানখিনি হ'ব পাৰে কৰা হৈছে। তোমালোকে দেখা পাইছা অতিৰিক্ত লঘু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আমি আগতে 9টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ, এতিয়া 10 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম। যেনেকৈ परसाई जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? उत्तर होगा उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। नेक्स्ट दिया से उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने क्या कार्य शुरू किया? माने उच्च शिक्षा लाभ करार पिছত की काम आरम्भ करिছিল? उत्तर होगा MA करने के बाद उन्होंने अध्यापना कार्य शुरू किया था, अर्थात टीचिंग दिবলৈ आरम्भ কৰিছিলে। तार पिছত परसाई जी स्वतंत्र लेखन कार्य से कब जुड़े? उत्तर होगा वह सन 1947 के स्वतंत्र लेखन कार्य में जुड़ गए। तब नेक्स्ट दिया से लेखन के अलावा उन्होंने और किस क्षेत्र में कुछ समय काम किया? उत्तर होगा उन्होंने कुछ समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया। तार पिছত नेक्स्ट दिया से परसाई जी का निधन कब हुआ? उत्तर होगा उनका निधन सन 1995 में हुआ। नेक्स्ट दिया से पाठ में दिए गए उनके प्रमुख निबंध संग्रहों के नाम बताइए। यार उत्तर होगा जे भूत के पाँव पीछे, सदासर की ताबीज़, बेईमानी की परत, पगडंडिय का जमाना और शिकायत मुझे भी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया से पाठ के अनुसार उनके व्यंग्य संग्रह कौन से है? उत्तर होगा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और तिरछी रेखाएं। नेक्स्ट दिया से परसाई जी के निबंधों का आकार कैसा होता है? उनके निबंध का आकार लघु अर्थात छोटे होते हैं। नेक्स्ट दिया से उनके व्यंग्य रचनाओं में किस प्रकार की अनोखी शक्ति दिखाई देती है? उत्तर होगा उनकी रचनाओं में पाठकों के भीतर तिलमिलाहट पैदा करने वाली एक अजीब शक्ति होती है। এনেকৈ 4 নম্বৰ পাৰ্টটো আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন এনচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। ধন্যবাদ সকলোকে।